Hello student, this is Assistant Professor Ramkaur Ramgadia. Today we will going to see software engineering. Okay, we will going to see our third chapter in software engineering. So let us start with the third chapter of software engineering, that is software development life cycle. In this chapter we will going to see introduction, activities of SDLC, a generic process module, SDLC, waterfall module, incremental process module, prototyping module and spiral module. So let us start with a brief introduction. Software life cycle is a series of identifiable stages that a software product. Okay, in this way we will going to create a software life cycle is a development of a software. Okay, SDLC सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है और ये कैसे वे में किस वे में हम लोग सॉफ्टवेयर रेडी करेंगे ये हम डीपली जानेंगे बाय यूजिंग द लाइफ साइकिल ऑफ अ सॉफ्टवेयर. In this, we will going to see what is the purpose for which the software is being developed and what are the objective it has to fulfill. ठीक है, ये दो चीजें हम देखेंगे. Next one, what are the functions that the software has to perform to fulfill its objectives. कौन कौन से functions उसे perform करने हैं ताकि वो fulfill कर सके एक particular software का goal. Now let us see what is SDLC. Okay, SDLC is a software life cycle which is used for developing a software life cycle. It is a particular representation of a software which is also called as a SDLC. Mostly this is used, okay, and this is developed by the National Computing Center in 1960 for developing large scale functional business system. Now, a SDLC can be defined as a process or series of steps or phase that provide a model for the development of high quality software. Next one, there are different phases within SDLC and each phase has its variety of activities. ठीक है, SDLC ये 1960 में डेवलप हुआ था और ये डेवलप किया गया था नेशनल कंप्यूटिंग सेंटर ने. और ये डेवलप करने के पीछे का रीजन ये था कि आप लोगों को जब एक फॉर्मेट प्री डिफाइंड फॉर्मेट पता चलता है, आप लोगों को एक फ्लो पता चलता है सॉफ्टवेयर कैसे आप डिजाइन कर सकते हो, by using that concept, by following that particular life cycle or format, you can also make your own software. There are different phases within SDLC and each phase has a various activity. Okay, यहाँ पे n number of phases present है जिसके थ्रू हम activities create कर सकते हैं. It makes the development terms about able to design, create, deliver and a high quality product of a software. Now, here we can see a feasibility analysis, cost benefit analysis, project management, hardware and software selection and personal consideration. अब यहाँ पे जब भी हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने के लिए स्टार्ट करते हैं हमारे पास ये सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहती है. फिजिबिलिटी एनालिसिस करते हैं हम. नेक्स्ट वन, हमारी कॉस्ट कितनी जाएगी. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करने के लिए हार्डवेयर कौन कौन से रिक्वायर्ड है, कौन से पर्सन हम लोग चूज कर सकते हैं सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए, सॉफ्टवेयर डेवलपर किसे बनाएंगे एंड सो ऑन. नाउ लेट अस सी द एक्टिविटीज ऑफ SDLC. The process used to create a software product from scratch to its public release, it is called as a software development process life cycle module. Now here are the some categories of the process module. So let us see. First one is a definition. Definition means what are the requirement analysis and we will going to plan accordingly. Next one, development. How we can do that? Okay, we will going to perform design and coding for a software. In the last we will going to add and maintenance, that means changes, correctness and updation to a particular software. Okay, this is a simple series of sequentially interrelated activities lead to the successful completion of a set of program, which means a particular software during given a particular period of time. It will going to have some phases. So let us see. Okay, this is a waterfall module. As you can see, in first section we can see primary investigation and feasibility study. Next one, analysis. After that, detailed
after that designing, implementation, testing, deployment and maintenance. Now let us see first one, that is primary investigation and feasibility study. Okay, primary investigation means we will going to collect all the information from the customer and we will going to start planning accordingly. Analysis details will be taken place while we are collecting information. Whatever the user is whatever the customer is telling whatever the customer is saying to us, we will going to make a note and we will going to write down. Okay, after the customer is finished, uh, after the customer is finished to say his requirement, we will going to wrote down and we will going to do a detailed study on that particular thing. During feasibility study, we can create a small project and we will going to discuss on economic, what are the budget, who are the person required, what are the keys we can use that, and what are the given timeline. According to that particular time, we will going to make our own project. ठीक है. Next one is an analysis or requirement gathering. Here we will going to analysis all the requirement of that particular project. We will going to start collecting what are the requirements. Next one, we will going to collect all the information from other peoples also, like for example their families, their friends, xyz persons. We will going to create a small system and we will going to start processing according to that particular activity. Okay, and we will going to take end user for creating that particular requirement. ओके, यहाँ पे हमने दो टाइप देखे हैं. फर्स्ट वाला देखा है प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन एंड फिजिबिलिटी स्टडी, जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे सिर्फ कस्टमर से. कस्टमर ने जो भी इंफॉर्मेशन दी है उसके नोट्स क्रिएट करेंगे. नोट्स क्रिएट करने के बाद एंड ऑफ द डे हम बजट डिसाइड करेंगे, कौन कौन से पर्सन हमें लगने वाले हैं, कितने टाइम ड्यूरेशन में हमें ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट रेडी करना है. यहाँ पे ये सारी चीज़ें, छोटे छोटे फैक्ट्स जो है ये हम डिस्कस करेंगे. एनालिसिस और रिक्वायरमेंट गैदरिंग के अंदर प्रोसेस होगी बिजनेस की. बिजनेस का एक कॉमन गोल डिसाइड किया जाएगा एक टाइमलाइन के साथ ही, और ये प्रोसेस करने के लिए कौन कौन से यूजर्स हमें रिक्वायर्ड है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे. और ये काम कौन कौन करने वाला है. अगर मैं सिर्फ कोडिंग कर सकती हूँ तो ज़रूरी नहीं है टेस्टिंग भी मैं ही करूँगी, तो उसके लिए दूसरे पर्सन हायर करने पड़ेंगे. नेक्स्ट वन, डिजाइनिंग प्रोसेस. ओके, डिजाइनिंग का मतलब क्या होता है, हम प्लान करते हैं हमारे सिस्टम को, और ये सिस्टम को प्लान करने के बाद हम लोग एग्जीक्यूट करने के लिए ट्राई करते हैं. अगर ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो हम उसे रिप्लेस करेंगे फिर से. In simple word, system analysis describe what the system should do, whereas system design focus on how to achieve the object. Okay, सिस्टम प्लान क्या करता है हमारा, वो डिस्क्राइब करता है कि हमें कौन कौन सी चीज़ें कब कब करनी है, और सिस्टम डिज़ाइन जो है वो बताता है कि ये सारी चीज़ें हम कैसे करेंगे. ऑल द टेक्निकल डिटेल्स शुड सच एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, environment, machines, packages, application, architectures, distributed architecture layers, memory size, platform, algorithm, data structure, global type of definition, everything. ठीक है, छोटी से छोटी बात, बड़ी से बड़ी चीज़ें सारी की सारी डिज़ाइन के अंदर प्रेजेंट होगी, डिज़ाइन फेज के अंदर. नेक्स्ट वन, इम्प्लीमेंटेशन और कोडिंग. इम्प्लीमेंटेशन और कोडिंग मीन्स स्टार्टिंग कर रहे हैं हम डेवलप करने के लिए एक पर्टिकुलर कोड को, एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को अकॉर्डिंग टू अ डिज़ाइन डॉक्यूमेंट. ठीक है, जो भी हमने डिज़ाइनिंग किया है, अब वो डिज़ाइनिंग करने के बाद हम लोग वो फेज से बाहर निकल के कोडिंग के फेज में जा रहे हैं. द सॉफ्टवेयर डिज़ाइन इज ट्रांसलेटेड इनटू सोर्स कोड. All the component of the software are implemented in this phase. Okay, next one, testing. Testing starts once the code is completed. Okay, as you all know, एक बार कोड कंप्लीट हो गया तो आप टेस्टिंग भी स्टार्ट कर सकते हो. and the modules are related for testing. This phase, the development software is tested truly and any defects found are assigned to developer to get them fixed. Okay, यहाँ पे टेस्टर चेक करेगा, उसे जो भी एरर मिलेगी वो सारी की सारी एरर्स अपने जो सॉफ्टवेयर डेवलपर है उसे बताएगा. कौन ये करेगा, सॉफ्टवेयर टेस्टर. जो भी गलतियां हैं वो ढूंढेगा और ये सारी गलतियां किसको बताएगा, सॉफ्टवेयर डेवलपर को. नेक्स्ट वन,
डिप्लॉयमेंट, ठीक है। डिप्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। वंस द प्रोडक्ट इज टेस्टेड, it is deployed in the production environment, or first UAT, user acceptance test is done depend upon the customer expectation, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे यूजर की एक्सपेक्टेशन को आपका पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये चेक किया जाता है। कस्टमर को अगर कोई प्रॉब्लम है या कस्टमर को कोई चेंजेस करवाने हैं, तो वो डिप्लॉयमेंट के टाइम पे चेंजेस बोलता है। इफ द कस्टमर फाइंड्स द एप्लीकेशन एज अनएक्सपेक्टेड, देन साइंस ऑफ इट्स प्रोवाइडेड बाय द कस्टमर गो लीव। ओके, इसका मतलब क्या है, यहाँ कस्टमर के अगर कोई भी चेंजेस लग रहे हैं, उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली चेंजेस नहीं हुए, तो वो कस्टमर क्या करता है, वो कस्टमर अपने जो भी सॉफ्टवेयर को है अपने साथ लेके जाता है थोड़े टाइम के लिए, अपने साथ ही वो सॉफ्टवेयर को रखता है, उसके ऊपर वर्क करता है। मेंटेनेंस क्या होता है वो हम देखते हैं। आफ्टर सॉफ्टवेयर इज डिप्लॉयड, देन इट्स मेंटेनेंस बिकम, once when the client start using the developed system, then the real issue come up and requirement to be solved. Okay, अब यहाँ पे डिप्लॉयमेंट के टाइम पे जो हमने डिलीवर किया है हमारा सॉफ्टवेयर, अब वो एक पर्टिकुलर क्लाइंट हमारा यूज करेगा 4 दिनों के लिए। अब वो 4 दिनों के अंदर अंदर जो भी उसको चेंजेस रिक्वायर्ड होंगे वो सारे के सारे चेंजेस करने पड़ेंगे। जो भी प्रॉब्लम आ रहे हैं सारे के सारे प्रॉब्लम्स हमें सॉल्व करने पड़ेंगे। ओके, then the real issue come up and requirement to be solved from time to time। अगर हर 6 महीने बाद उसे कोई दिक्कत आ रही है, तो आपको हर 6 महीने बाद उसके जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी चेंजेस है वो आपको करने पड़ेंगे। दिस प्रोसीजर वेयर द केयर इज टेकन फ्रॉम द डेवलपमेंट प्रोडक्ट इज नोन एज मेंटेनेंस। ओके, जैसे आप लोग बिल्डिंग का मेंटेनेंस देते हो, उसी वे में सॉफ्टवेयर के भी मेंटेनेंस होते हैं, ये याद रखो। नेक्स्ट वन, a generic process model. Now let us see what is a generic process model. It is defined as a module of process system that describe process organization, categorization, hierarchy, interrelationship and tolerability. ओके, यही सारे पार्टों में डिवाइड किया जाता है जेनरिक प्रोसेस। Software process modules are systematic methods for controlling and coordination the development of a software product, achieving all the state objective। ठीक है, हमारे जो भी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के ऑब्जेक्टिव्स है, चाहे वो किसी भी वे में हो, चाहे वो कोऑर्डिनेशन डेवलपमेंट में हो, ऑर्गेनाइजेशन में हो, कैटेगराइजेशन में हो, इंटर रिलेशनशिप हो, टॉलरेटेंस हो, जितने भी प्रेजेंट है, ठीक है, जेनरिक प्रोसेस मॉडल में, वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स ये ट्राई करेगा अचीव करने के लिए। द जेनरिक सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉड्यूल आर abstraction after the process that can be used to explain different approach to different development। okay, अब यहाँ पे हम लोग जेनरिक सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉड्यूल जो है ये कब कब यूज कर सकते हैं, ये हम लोग सिर्फ तभी एक्सप्लेन कर सकते हैं जब हमारा अप्रोच, हमारा यूज करने का तरीका पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को अलग हो। दिस प्रोसेस मॉड्यूल में बी एक्सटेंडेड एंड अडेप्टेड टू क्रिएट मोर स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पे हम ये प्रोसेस जो है जेनरिक प्रोसेस मॉड्यूल, ये हम कब अडेप्ट कर सकते हैं, जब हमारे पास कुछ अलग हटके सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट के लिए नोटिस आया है या कोई कस्टमर ने हमें बोला है, तब हम इसका यूज करेंगे। नाउ लेट अस सी एक्टिविटीज ऑफ जेनरिक प्रोसेस मॉड्यूल। there are different types of activities. First one is communication. Okay, involves communication among customers and other stakeholder, includes requirement gathering। ठीक है, अगर जब भी हम उनसे बातचीत करेंगे, जब भी हम बात करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। नेक्स्ट वन, प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब क्या होता है, इस्टेब्लिशिंग अ प्लान फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वर्क, एड्रेस टेक्निकल टास्क, ओके, रिसोर्सेस, वर्क प्रोडक्ट एंड वर्क शेड्यूल। अब यहाँ पे प्लानिंग के अंदर हम लोग डिसाइड करेंगे कि हमें सॉफ्टवेयर कैसे वर्क करना है, सॉफ्टवेयर कैसे वर्किंग प्रोसेस में लाना है, हमारा टास्क क्या क्या होगा, रिक्वायरमेंट फर्स्ट कौन कौन से हमें अचीव करने हैं, रिसोर्सेस कौन से लगेंगे, कौन से प्रोडक्ट है, शेड्यूल क्या होगा काम करने का। नेक्स्ट वन, मॉडलिंग, विच मीन्स एनालिस एंड design. It includes certain, okay, it includes the creation of model to the better
ओके, टू अंडरस्टैंड द बेटर रिक्वायरमेंट ऑफ द डिज़ाइन। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एनालिसिस करेंगे, डिटेल स्टडी करेंगे, डिज़ाइन के रिलेटेड ही हमने जो डिज़ाइन किया है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग कोड और टेस्टिंग कर सकते हैं क्या, जो चेंजेस है वो हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। नेक्स्ट वन इज ए कंस्ट्रक्शन विच इज नोन एज अ कोड और अ टेस्ट, combines code generation and testing to find errors। ओके, यहाँ पे कोड हम करेंगे और जो भी एरर होगी उसे हम फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट वन डिप्लॉयमेंट, इट इन्वॉल्व्स डिलीवरी ऑफ सॉफ्टवेयर टू द कस्टमर फॉर इवैल्यूएशन एंड फीडबैक। डिप्लॉयमेंट के अंदर हम कस्टमर को उसका सॉफ्टवेयर देंगे और उससे फीडबैक लेंगे। नेक्स्ट वन advantages of process model, so let us see what are the advantages of process model। enables effective communication। ओके, अब यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल आपकी जितनी स्ट्रॉन्ग होंगी उतनी आप सामने वाले को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो। सो ये फर्स्ट फैक्ट है। ठीक है, और ये यहाँ पे प्रोसेस एग्जीक्यूशन में हम लोगों की हेल्प करता है कम्युनिकेशन। नेक्स्ट वन फैसिलिटेट्स प्रोसेस रीयूज। ओके, अब यहाँ पे हम लोगों ने एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया है, पर्टिकुलर प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया है, हम उसे डिफरेंट वे में यूज़ कर सकते हैं। प्रोसेस डेवलपमेंट इज अ टाइम कंज्यूमिंग ओके एंड एक्सपेंसिव एक्टिविटी, द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम यूटिलाइज द एग्जिस्टिंग प्रोसेस। ओके, एग्जिस्टिंग प्रोसेस का मतलब क्या है, उनके लाइब्रेरी में ऑलरेडी कोडिंग कर करके उन्होंने रखी होती है सेव करके अपनी अपनी फाइल। जब उन्हें लगता है कि ये सेम हमारा सॉफ्टवेयर का कोड है, हम लोग यहाँ से उठा सकते हैं, ले सकते हैं, तो डायरेक्टली वो वहाँ से डेटा ग्रैब करते हैं। नेक्स्ट वन इफेक्टिव, अभी यहाँ पे इफेक्टिव का मतलब क्या है, द प्रोसेस मॉड्यूल कैन यूज अगेन एंड अगेन, reusable process provide an effective means okay for implementing process for software development। इफेक्टिवनेस मतलब हम अगेन एंड अगेन रीयूज करेंगे, उसका यूज कर करके उसे और अच्छे वे में डिजाइन करने के लिए थिंक करेंगे। नेक्स्ट वन facilitates process management। Okay, this provide a framework for defining process status criteria and measures for software development। ठीक है, यहाँ पे ये क्राइटेरिया डिसाइड करता है, क्राइटेरिया डिसाइड होने के बाद मेजर करता है हम लोगों की एक्सपेक्टेशन क्या थी, हमें रिक्वायरमेंट क्या थी और हमारा रिजल्ट क्या है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज ए प्रोसेस फ्लो। Now let us see what is a process flow। Process flow show how the framework activity and the action task that occurs within each activity are organized with respect to sequence and time। Following are the types of or the process of SDLC। So let us see first one linear process। linear का मतलब क्या होता है, एक के बाद एक, one after the another, one after the another। So first one यहाँ पे आएगा communication, planning, modeling, construction, deployment। okay, linear process में। नेक्स्ट वन है हमारे पास इंटरैक्टिव प्रोसेस। इंटरैक्टिव प्रोसेस में अब यहाँ पे ये सारे सीक्वेंस चेंज हो जाएंगे। एन इंटरैक्टिव प्रोसेस फॉलो रिपीट्स वन और मोर ऑफ द एक्टिविटीज बिफोर प्रोसेसिंग बिफोर प्रोड्यूसिंग द नेक्स्ट वन। ओके, अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, हम लोग एक पर्टिकुलर प्रोसेस को बार बार कॉल कर सकते हैं जब तक हमें लगता है कि हमारा डिजायर हमें आउटपुट नहीं मिल रहा है। तो फर्स्ट वन अब यहाँ पे आप देख सकते हो कम्युनिकेशन, ठीक है, प्लानिंग, फिर ये प्लानिंग के बाद फिर से वो कम्युनिकेशन कर सकता है, फिर से वो प्लानिंग कर सकता है, फिर से कम्युनिकेशन कर सकता है, फिर से प्लानिंग कर सकता है, फिर ये मॉडलिंग करेगा, मॉडलिंग अगर उसे लगा कि ये चेंज करनी चाहिए, ठीक है, फिर से वो चेंज करेगा, फिर से रिकंस्ट्रक्ट करेगा। नेक्स्ट वन इज ए कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन अब करने के बाद वो ज़रूरी है कि अपने अपने ओनर से बात करे, तो फिर से वो कम्युनिकेट कर सकता है। ओके, तो फिर से वो कम्युनिकेट करेगा। लास्ट में आता है डिप्लॉयमेंट। नेक्स्ट वन है evaluation process flow। okay, evaluation process flow follow executes the activity in a circular manner as shown। देखो यहाँ पे सर्कल बन रहा है, सबसे पहले कम्युनिकेशन, प्लानिंग, मॉडलिंग, कंस्ट्रक्शन, डिप्लॉयमेंट, फिर से अगर चेंजेस रिक्वायर्ड है तो फिर से कम्युनिकेशन, प्लानिंग, मॉडलिंग, कंस्ट्रक्शन, डिप्लॉयमेंट। अगर सेटिस्फाइड है कस्टमर तो यहाँ पे इंक्रीमेंटल रिलीज हो जाएगा हमारा। ओके, नेक्स्ट वन है
पैरेलल प्रोसेस का मतलब होता है एट अ टाइम हम दो प्रोसेस हैंडल कर सकते हैं. A parallel process flow executes one or more activities in a parallel with other activities as shown. ठीक है. Communication, planning, modeling. Directly we can go for communication and modeling also. After modeling, construction and deployment. Okay. Here we will going to have a time. Now let us see types of SDLC process model. Now here we can see a software life cycle model is either a descriptive or prescriptive characterization of how software is or should be developed. Okay, हम लोग कैसे सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं और क्यों करना है सॉफ्टवेयर डेवलप. ठीक है, हाउ सॉफ्टवेयर इज डेवलप एंड शुड बी डेवलप्ड. ओके, हमें क्यों करना है और करना ही क्यों है, ऐसे दो क्वेश्चन है हमारे पास. डिस्क्रिप्टिव मॉडल, in that first point, it is a descriptive model the history of how a particular. ठीक है, उस इंसान को क्यों चाहिए ये सॉफ्टवेयर, ये हमें पता होना चाहिए. हाउ, क्यों, व्हाई. ठीक है, software system was developed. A descriptive process model is defined as a model that describes what to do according to certain software process model. ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको क्या करना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए. डिस्क्रिप्टिव मॉड्यूल में ये बताया गया है. इट मे बी यूज एज अ बेसिस फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड इम्प्रूविंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस. ठीक है, ये क्यों यूज किया जाता है डिस्क्रिप्टिव मॉडल, ताकि आप लोगों को पता चल सके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने की प्रोसेस क्या है, व्हाई दे आर वेरी यूजफुल. और बिल्डिंग okay, or building an building an necessary user requirement model. okay, अब यहाँ पे यूजर रिक्वायरमेंट जो है वो पूरा हम बिल्ड करेंगे सॉफ्टवेयर के थ्रू यूजर की रिक्वायरमेंट की प्रोसेस. नेक्स्ट वन है प्रिस्क्रिप्टिव मॉडल. ओके, अब यहाँ पे प्रिस्क्रिप्टिव मॉडल में क्या आएगा, हाउ अ न्यू सॉफ्टवेयर सिस्टम शुड बी डेवलप्ड. हम लोग कैसे डेवलप करेंगे न्यू सॉफ्टवेयर को, ये होता है प्रिस्क्रिप्टिव मॉडल के अंदर. हम लोग गाइडलाइंस प्रोवाइड करेंगे, फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, स्ट्रक्चर देंगे. ठीक है, ये सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म्ड करेंगे और ये सारे ऑर्डर्स हम लोग डिसाइड करेंगे. नेक्स्ट वन है प्रिस्क्रिप्टिव प्रोसेस मॉडल. ओके, इन दिस waterfall model, incremental model and evaluationary models are present. A process elements are the work product or the frame, activities, quality assurance, action, task and the control mechanism. okay, यहाँ पे ये सारी चीजें प्रेजेंट होती है. तो हम लोगों ने वाटरफॉल मॉडल तो देखा है, एक बार सिर्फ हम उनका ओवरफ्लो लेंगे, वाटरफॉल मॉडल का ओवरव्यू करेंगे. The waterfall model was first process model. It is also referred as a linear sequential life cycle model or a classic life cycle model. ओके, ये लीनियर लाइफ साइकिल मॉडल भी आप बोल सकते हो, क्लासिक मॉडल भी बोल सकते हो, क्योंकि ये सिंपल है, इजी टू यूज है, इजी टू अंडरस्टैंड है और ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर है और बेस्ट यूज है इन अपर मैनेजमेंट के लिए. Next one, in waterfall model, a workflow is a linear. That means in a one line, that is sequential fashion. The waterfall model often used with well-defined, appropriate, okay, or enhancement to current software. Next one, अब यहाँ पे देखेंगे हम communication project initialization, requirement gathering, जो भी requirement है वो हम collect करेंगे. Next one, planning, estimating, scheduling, tracking. Next one, modeling, analysis, designing, construction, code, test. Next one, deployment, delivery, supports and feedback. ये सारे पॉइंट्स हम लोगों ने देखे हैं अभी तक जो भी हमने पढ़ा है. ठीक है, तो उसका हम एक रिवीजन लेंगे. A waterfall life cycle model is defined as the method of binding in a stage where one stage is completed before the next stage begins. Okay, यहाँ पे एक स्टेज को कंप्लीट किया जाता है नेक्स्ट स्टेज स्टार्ट करने से पहले. इन अदर वर्ड्स, इट इज अ फेज which must be
completed fully before the next phase can be begin. This type of software development model is basically used for the project which small and there are no uncertain requirement. ठीक है, ऐसे टाइप के मॉड्यूल्स आप लोग छोटे बना सकते हो और अनसर्टेन रिक्वायरमेंट के लिए हमें ये मॉड्यूल जरूरत नहीं है. नेक्स्ट वन, दिस मॉड्यूल सॉफ्टवेयर टेस्टिंग स्टार्ट ओनली आफ्टर द डेवलपमेंट इज कंप्लीटेड. ठीक है, अब यहाँ पे ये कब स्टार्ट होगा, जब आपकी डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाएगी तभी ये स्टार्ट हो सकता है. मतलब यहाँ पे आप लोगों को पता चल गया रिक्वायरमेंट क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है, कौन कौन पर्सन करने वाले हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, वो सारी कलेक्ट होने के बाद ही आप लोग यहाँ पे सॉफ्टवेयर बनाना स्टार्ट कर सकते हो. इन वाटरफॉल मॉडल फेज डू नॉट ओवरलैप एट द एंड ऑफ द ईच फेज. ओके, यहाँ पे कोई भी ओवरलैप नहीं होता है क्योंकि एक फेज ही यहाँ पे एट अ टाइम एग्जीक्यूट होता है, कंप्लीट होता है. A review take place to check that the project is on the right path and whether or not to continue or discard the project. ठीक है, यहाँ पे चेक किया जाता है कि आप लोगों का जो प्रोजेक्ट है वो राइट पाथ में चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, या आप लोगों को डिस्कार्ड करना है. ठीक है, नेक्स्ट वन इज ए V&V मॉड्यूल. V&V मॉड्यूल फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने देखा था और इसी पे यहाँ पे अभी V&V मॉड्यूल का एक अलग फेज हम लोग स्टडी करेंगे. सो लेट अस सी a contemporary of traditional software development module, that is V module. V module also refers to as the verification and validation module. Okay, verification मतलब जो एक्चुअल आप लोग इंफॉर्मेशन डाल रहे हो वो एक्यूरेट है क्या नहीं है. ठीक है, वैलिडेशन मतलब आप लोगों ने जो इंफॉर्मेशन डाली है वो राइट है क्या रॉन्ग है वो चेक करेगा. in this each phase of SDLC must complete. Okay, SDL के सारे फेज कंप्लीट होने चाहिए तो ही आप लोग नेक्स्ट फेज के लिए जा सकते हो. इट फॉलो अ सीक्वेंस डिजाइन प्रोसेस एज सेम एज द वाटरफॉल मॉड्यूल. ये भी सेम वही वाटरफॉल मॉड्यूल के ही मॉड्यूल्स वहाँ पे अप्लाई करता है. टेस्टिंग ऑफ डिवॉइस is planned in parallel with the corresponding stage of development. Okay, now see this architecture of V&V module. Here, business requirement specification, first part, as you can see, same at a time. Acceptance testing is taken. Okay, developers life cycle, tester life cycle, these are two parts. Here verification phase is present, validation phase is present. Okay, see the difference. Next one, system requirement specification, high level design, low level design, coding. Now unit testing, component testing, system integration testing, acceptance testing, all this present in validation, which is tested by the tester. Okay, now let us see phase of V module. Okay, phase of V module, phases of verification, phases of V module. First one is a business requirement analysis. This is the first step where the product requirement understood from the customer side. ठीक है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है ये हम प्रॉपरली अंडरस्टैंड करके लेंगे. अगर हमें कस्टमर की रिक्वायरमेंट ही पता नहीं चलेगी तो हम अच्छा सा कोई भी प्रॉपर सॉफ्टवेयर नहीं डेवलप कर सकते. Next one, this phase contains details communication to understand customers expectation and exact requirement. Okay, next one, second, system design. In this stage, system engineers analysis and interrupt the business of the proposed system by understanding the user requirement document. Okay, यूजर रिक्वायरमेंट कौन कौन से है उनके डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने के लिए ये स्टार्ट करेगा. थर्ड पॉइंट, आर्किटेक्चरल डिजाइन. आप लोगों का आर्किटेक्चरल डिजाइन कैसा है, ड्राफ्टिंग कैसा है, टेक्निकल मेथोडोलॉजीज आप लोगों ने कौन से अडॉप्ट किए हैं, कौन कौन से आप लोगों ने अडॉप्ट करने के बाद कंप्लीट किए हैं सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मॉड्यूल्स के गोल्स. ठीक है, नेक्स्ट वन, मॉड्यूल डिजाइन. मॉड्यूल डिजाइन फेज में क्या होता है,
ब्रेक डाउन तो नहीं हो रहा आप लोगों के सिस्टम का। अगर आप लोगों के सिस्टम के स्मॉल स्मॉल ब्रेकडाउन मॉड्यूल्स आप लोगों ने रेडी किए हैं तो उनकी डिटेल डिजाइनिंग मेथोडोलॉजी स्पेसिफिकेशन रेडी होनी चाहिए। वहां पे आप लोगों को पता चलेगा कि लो लेवल के डिजाइन कौन कौन से प्रेजेंट है। नेक्स्ट वन, कोडिंग फेज। अब यहाँ पे कोडिंग फेज के अंदर आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, कोडिंग फेज के अंदर आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा डिजाइन कैसे करते हैं, कोडिंग के फेज कहाँ से हैं, स्टार्टअप कहाँ से करेंगे, बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट अ सुटेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज डिसाइड। ठीक है। नेक्स्ट वन, फेज ऑफ वैलिडेशन, फेज ऑफ वी मॉड्यूल। ओके, अब यहाँ पे ये टेस्टर के साइड पे है, वो डिजाइनर के साइड पे था, डेवलपर के साइड पे, ये टेस्टर के साइड पे है। यूनिट टेस्टिंग, इन द वी मॉड्यूल यूनिट टेस्ट प्लान्स यानी कि यूटीपी आर डेवलप्ड ड्यूरिंग द मॉड्यूल डिजाइन फेज। These UTP are executed to eliminate, okay, to eliminate errors at code level of unit level। ठीक है, जो भी आप लोगों की कोडिंग में एरर्स होंगी ये सारी की सारी कोडिंग की एरर्स रिमूव की जाएंगी यूनिट टेस्टिंग के अंदर। नेक्स्ट वन, इंटीग्रेशन टेस्टिंग। नाउ इंटीग्रेशन टेस्ट प्लान्स आर डेवलप्ड ड्यूरिंग द आर्किटेक्चर, ओके, design phase। The term integration testing refers to the collaboration of the pieces of code। यहाँ पे piece of code को हम लोग छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं, सिंगल एंटिटी के ऊपर वर्क करते हैं, सिंगल एंटिटी के ऊपर वर्क करने के बाद हम चेक करते हैं कि ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है क्या नहीं। ठीक है, कोलैबोरेशन कर रहा है क्या नहीं। कोलैबोरेशन का मतलब एक दूसरे के साथ आप लोग जब ज्वाइन करते हो ये सारे छोटे छोटे पीसेस को, वहां पे एरर्स तो नहीं आ रही, वो चेक किया जाता है। नेक्स्ट वन, सिस्टम डिजाइन, सॉरी सिस्टम टेस्टिंग। अब सिस्टम टेस्टिंग जो है डेवलपर के साइड पे होती है और ये डेवलपर के साइड पे होती है टेस्टिंग। उसकी मतलब वो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो अगर बोल रहा है कि मुझे ये चेंज करके दो तो आपको चेंज करना पड़ेगा। सिस्टम टेस्ट प्लान्स आर डेवलप्ड ड्यूरिंग सिस्टम डिजाइन फेज अनलाइक until and integration test plan। सिस्टम टेस्ट प्लान्स आर कंपोज बाय क्लाइंट बिजनेस टीम। ठीक है, जब तक वो अप्रूवल नहीं देंगे तब तक हम बोल नहीं सकते कि हमारा सॉफ्टवेयर पर्टिकुलरली अच्छा बना है क्या नहीं बना है। नेक्स्ट वन, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग इज रिलेटेड टू द बिजनेस रिक्वायरमेंट एनालिसिस पार्ट। इट इंक्लूड्स टेस्टिंग द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इन यूजर एटमोसफियर। ठीक है, यहाँ पे यूजर एटमोसफियर मतलब यूजर के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली यहाँ पे आप लोगों की सिस्टम टेस्ट की जाती है। ओके, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स हम लोगों ने आज देखे हैं। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया हो फेजेस कौन कौन से है, वी एंड वी मॉड्यूल्स कौन कौन से प्रेजेंट है। नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारा ये चैप्टर। ओके।